Dear students, I welcome you all in my English class, and today we are going to study English Reader Chapter 2, Goa, a Tourist Paradise. Okay. Holiday refresh us. They are always packed with fun. People holiday for a number of reasons. Some of them are given below. Rank them according to your choice and order of importance. Okay? So now you have to tell, why do you love holidays? I love holidays because I can have lots of fun. So is it according to you, is this? You can tick here. Spend time with my family. Okay. Visit new places and meet new people. Know more about different cultures, relax and forget about studies. So whatever you want you can. ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे लगता है कि आप इस वजह से हॉलीडे पे जाना चाहते हो तो आप इस पे टिक कर सकते हो. ठीक है. Now I'm moving to the next slide. Read and enjoy. So let's begin this chapter. ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेस इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग एंड एजुकेटिव. जब हम किसी भी जगह पे यात्रा करते हैं ना तो ये हमेशा एक्साइटिंग होता है और बहुत एजुकेटिव होता है. मीन्स बहुत सारे लेसन से भरा होता है. Let's find out how Sharat, Anandi and their parents enjoyed a vacation in Goa. ठीक है. So these three characters, शरत, आनंदी और उनके मम्मी पापा, वो सब कहाँ जाते हैं वेकेशन में? गोवा पर. और हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि उन्होंने गोवा में कैसे मस्ती की. They came to know much about the people and their culture during the trip. They came to know, और उन्हें पता चला मच अबाउट द पीपल, मतलब वहाँ के लोगों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में अपने ट्रिप के दौरान पता चला. ठीक है. नाउ Sharat built a beautiful sand castle on the beach. You all can see here it's Sharat, and Sharat built a beautiful sand castle. उसने जो है एक sand castle बनाया on the beach पर. As his parents watched from a distance, और उसके मम्मी पापा दूर से देख रहे थे. His sister आनंदी, और जो उसकी बहन है ना ये आनंदी, helped him to decorate it with seashells, और उसकी बहन ने seashells से उसको डेकोरेट करने में महल को उसने हेल्प की. The castle had 3 towers. You all can see in the pictures there are 3 towers and high walls. ठीक है. और ऊंची ऊंची दीवारें हैं. At the horizon the setting sun looked like a glowing golden ball. At the horizon the setting sun, और जो ये डूबता हुआ सूरज है ना, it's look like a glowing golden ball, चमकदार golden ball जैसा दिख रहा है. The sun rays turned everything golden. और आपको पता है ये जो setting sun है ना, इसने सभी चीज़ों को एकदम golden बना दिया है. And the waves lashing on the shore, और जो लहरें हैं ना वो शोर पे आके टकरा रही हैं. And shore touched their feet, है ना. और जो बीच है या जो बीच का शोर है वो उसको क्या कर रही है, उसके फीट को टच कर रही हैं. मनोहर एंड कल्याणी हैड बीन प्लानिंग दिस ट्रिप टू गोवा. शरत और आनंदी के मम्मी पापा का नाम क्या है? मनोहर उसके पापा हैं और मम्मा का नाम कल्याणी है. They had been planning this trip to Goa for 2 years, और वो लगभग 2 साल से गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे थे अपने बच्चों के साथ. शरत एंड आनंदी जो कि उनके बच्चे हैं. This was the family the first holiday on a sea beach. This was the family first holiday. ये उनके परिवार का पहला हॉलीडे था जो कि कहीं समुद्र के किनारे था. The sun-kissed beaches, rows of coconut trees along them and vast Arabian Sea make Goa a perfect holiday spot. ठीक है. तो जो sun-kissed beaches थे और rows of coconut trees, जो coconut trees की rows थी जो एक लाइन से लगे हुए थे, and the vast और Arabian Sea, और जो एक विशाल जो large Arabian Sea है, make Goa a perfect holiday स्पॉट, जो गोवा को एक परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट बनाता है, प्लेस बनाता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दे कुड सी सम चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द बागा बीच. वो देख सकते थे कि कुछ बच्चे बागा बीच पर खेल रहे थे. while some tourists were sunbathing, जबकि कुछ टूरिस्ट जो थे वो सनबेथ कर रहे थे, है ना. a few people were swimming in the sea, और कुछ लोग जो हैं वो सी में तैर रहे थे. आनंदी suddenly pulled शरत टी-शर्ट. अचानक से आनंदी ने शरत के टी शर्ट को खींचा एंड सेड, और कहा, लुक देखो, दीज 2 boats आर कमिंग टूवर्ड्स द शोर. ये दोनों जो बोटें हैं वो टूवर्ड्स द शोर मीन्स किनारे की तरफ आ रही हैं.
दे आर मूविंग अप एंड डाउन ऑन द वेव्स, और वो लहरों पर ऊपर नीचे हो रही हैं। शरत एंड कल्याणी टर्न टू वॉच द बोट्स, शरत और कल्याणी ने भी बोट की तरफ घूमे उसे देखने के लिए। मनोहर स्माइल्ड, मनोहर मुस्कुराए। दोज आर फिशरमैन, वो कौन है? फिशरमैन है हु गो आउट इन देयर बोट्स टू कैच फिश, जो कि अपने बोट्स में मछलियां पकड़ने जाते हैं। दे कास्ट नेट्स टू वॉच क्रैब्स, दे कास्ट नेट्स मीन्स वो जाल फेंकते हैं टू कैच क्रैब्स, क्रैब्स मीन्स केकड़े को पकड़ने के लिए। प्रॉन्स, प्रॉन्स इज ऑल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ फिश। लॉबस्टर एंड ये सब जो है आपके सी फूड हैं। एंड वेरियस काइंड ऑफ फिशेज, और विभिन्न तरह के फिशेज को, मछलियों को पकड़ने के लिए। दे कम बैक एंड सेल देम, और वो जब उन्हें पकड़ के लाते हैं तो उन्हें बेच देते हैं। आनंदी लुक्ड एक्साइटेड, आनंदी जो है वो बहुत एक्साइटेड हुई। ओके फादर, मतलब वो बहुत एक्साइटेड दिखाई दी। ठीक है पापा। विच प्लेसेस विल वी विजिट टुमारो, हम कौन सी जगह घूमेंगे कल? मनोहर सेड वी विल विजिट अंजुना, मनोहर ने कहा कि हम अंजुना जाएंगे, कैंडोलिम जाएंगे एंड कैलंगुएट जाएंगे। कैलंगुएट बीचेस टुमारो मीन्स हम ये बीचेस को देखने कल जाएंगे। वी विल ऑल्सो विजिट सम चर्चेज, और हम कुछ चर्चेज को भी देखने जाएंगे। वी विल गो टू बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस इन गोवा, गोवा। ठीक है, जो पुराना गोवा है वहाँ पर एक चर्च है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस, ये वहाँ पे भी जाएंगे। एंड द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी, ये उन चर्च को भी देखने जाएंगे। लेट्स गो बैक टू द होटल, चलो होटल चलते हैं। एंड टेक सम रेस्ट नाउ, और कुछ आराम करते हैं। ठीक है, और आराम करते हैं। Later the family had a quiet dinner at the hotel. बाद में फैमिली ने होटल में जाके डिनर किया। दे एन्जॉयड द ट्रेडिशनल फूड ऑफ गोवा, उन्होंने गोवा का जो ट्रेडिशनल फूड है उसको एन्जॉय किया। ट्रेडिशनल फूड में क्या क्या एन्जॉय किया? उन्होंने एन्जॉय किया फिश करी, राइस को, एंड अरूज डोस। अरूज डोस क्या होता है? एक तरह की पुडिंग होती है दैट मेड फ्रॉम राइस मिक्सड विद वाटर, जिसमें चावल और पानी को मिला के और उसमें दूध और दूसरे इंग्रेडिएंट मिला के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। आफ्टर डिनर करने के बाद दे वेंट बैक टू देयर रूम, वो वापस अपने कमरे में चले गए। शरत एंड आनंदी sat next to their parents. ठीक है, शरत और आनंदी वो अपने मम्मी पापा के बगल बैठे on the bed before going to sleep. ठीक है, on the bed means बेड पर सोने जाने से पहले। शरत asked curiously, ठीक है, शरत ने अपने पापा से उत्सुकता के साथ पूछा, फादर टेल अस मोर अबाउट गोवा, पापा हमें गोवा के बारे में और बताओ। मनोहर सेड गोवा इज इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट, गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से, एंड द फोर्थ स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और जनसंख्या के हिसाब से ये चौथा सबसे छोटा जो है स्टेट है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और ये जो है भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है अलॉन्ग द अरेबियन सी के साथ। इट इज़ रेनाउंड फॉर इट्स ब्यूटिफुल बीचेस मीन्स इट इज़ फेमस, ये प्रसिद्ध है फॉर इट्स ब्यूटिफुल बीचेस, अपने सुंदर बीचेस के लिए। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज फ्लॉक हियर फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। ठीक है, टूरिस्ट केवल भारत के ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी यहाँ पे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज के लिए यहाँ पर आते हैं। पानाजी यानी पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा, ये गोवा का कैपिटल है। द अदर इम्पॉर्टेंट सिटी इज़ मारगांव, यहाँ का जो दूसरा महत्वपूर्ण शहर है उसका नाम मार्गो है। इट्स नॉट ऑल दिस इंटरेस्टिंग, द चिल्ड्रन नॉडेड, बच्चों ने अपना सर झुकाया। हाँ पापा, बहुत इंटरेस्टिंग है गोवा के बारे में जानना, है ना। आनंदी लिसन कीनली, आनंदी ने बहुत ध्यान से सुना। एज कल्याणी फर्दर एडेड, और फिर कल्याणी ने ऐड किया, दिस प्लेस इज रिच इन फ्लोरा एंड फाना। ठीक है, उसकी मम्मा ने बताया कि ये जो जगह है वो सिर्फ फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स के लिए एंड फौना मीन्स एनिमल्स के लिए भी जाना जाता है। एज इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स रेंज, क्योंकि जो ये
गोवा है जो ये स्टेट है, ये वेस्टर्न घाट रेंज में लोकेटेड है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जान के आश्चर्य होगा दैट गोवा हैज़ अ लिटरेसी रेट ऑफ 87%, और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है ना वो 87% है। दैट इज़ गुड एक्चुअली। हेयर मोस्ट ऑफ द मेन एंड वुमेन आर लिटरेट, और ज़्यादातर महिलाएं और पुरुष यहाँ के लिटरेट है, सुशिक्षित हैं। कोंकणी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज हियर, कोंकणी जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा मराठी, हिंदी और पोर्तुगीज़ ये भी यहाँ के लोगों के द्वारा बोला जाता है। सो यू कैन लर्न कोंकणी हियर चिल्ड्रन। बच्चों आप यहाँ पर कोंकणी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। शरत एंड आनंदी लुक्ड कंफ्यूज्ड, शरत और आनंदी जो है वो कंफ्यूज्ड दिखाई दिए। बट हाउ कैन वी लर्न इट इन 2 days, हम 2 दिन में कैसे सीख सकते हैं? कल्याणी सेड, कल्याणी जो कि उनकी मम्मा है शरत और आनंदी को कि उन्होंने बोला, आई वॉज नॉट सीरियस, मैं सीरियस नहीं हूँ। आई नो इट इज़ पॉसिबल इन 2 days, आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल, मुझे पता है कि ये 2 दिन में तो बिल्कुल असंभव है। नाउ गो ऑफ टू स्लीप, अब तुम लोग सोने जाओ। वी हैव टू विजिट मेनी प्लेसेस टुमारो, कल भी हमें बहुत सारे जगह को विजिट करना है। नेक्स्ट डे द फैमिली हायर्ड अ कैब, मीन्स अगले दिन उन्होंने एक कैब को हायर किया, ठीक है, एंड विजिटेड द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा, और फिर वो चर्च गए। शरत सेड टू हिज फादर, शरत ने अपने पापा से कहा, व्हाई डू सो मेनी पीपल कम हियर, व्हाई डू सो मेनी पीपल कम हियर, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों आते हैं? मनोहर पेशेंटली आंसर्ड, मनोहर ने बहुत पेशेंटली आंसर दिया, वेल इट होल्ड्स द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। तो जो सेंट फ्रांसिस जेवियर हैं ये उनको मतलब रिगार्डेड एज द पैट्रोन सेंट ऑफ गोवा, जो कि गोवा के पैट्रोन सेंट माने जाते हैं, सेंट माने जाते हैं। दे लिट कैंडल्स एंड ऑल्सो विजिटेड द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, वो उन्होंने कैंडल जलाए और दे ऑल्सो विजिटेड, और वो कहाँ पर गए, और वो दूसरे चर्च भी गए, ठीक है, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। बाय आफ्टरनून, दोपहर तक, दे रीच द कैलंगुएट बीच, और वो कैलंगुएट बीच भी गए। दे टुक अ डिप इन द सी, और उन्होंने वाटर में भी डिप किया। एंड द चिल्ड्रन स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर, और बच्चों ने एक दूसरे पर पानी को स्प्लैश किया। लेटर दे हैड सम फ्राइड फिश एंड साना फ्रॉम अ शैक, मीन्स जो शैक का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ से उन्होंने सम फ्राइड फिश, उन्होंने कुछ फ्राइड फिश वहाँ से खरीदा, ठीक है। दे ऑल्सो विजिटेड द कैंडलिम बीच, और वो कैंडलिम बीच भी गए। दे वर अमेज्ड टू सी टूरिस्ट एंजॉइंग वाटर स्पोर्ट्स लाइक वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग एंड स्कूबा डाइविंग, ठीक है। वो बहुत अमेज्ड हुए, बहुत सरप्राइज्ड हुए ये देख करके कि वहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे थे, लाइक वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग एट द सिनिक्वेरम बीच। मनोहर एंड कल्याणी एंजॉइंड पैरासेलिंग, ठीक है, तो उन लोगों ने पैरासेलिंग को भी एंजॉय किया। शरत एंड आनंदी क्लैप्ड व्हेन देयर पेरेंट्स वर लिफ्टेड अप इन द एयर, जब उनके मम्मी पापा हवा में लिफ्ट किए गए तो वो तालियां बजा रहे थे। व्हेन दे लैंडेड द चिल्ड्रन वेंट ऑन वाटर स्कूटर्स, जब वो दोनों लैंड हुए तो बच्चे जो है वाटर स्कूटर पे मजा करने गए। इट वॉज लाइक राइडिंग मोटर बाइक, जो वाटर स्कूटर्स होते हैं वो राइडिंग मोटर बाइक्स की तरह होते हैं जो कि सी पर चलते हैं, ठीक है। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। ऑन देयर वे बैक टू द होटल, ठीक है, ऑन देयर वे बैक टू द होटल, होटल वापस आने पर दे सॉ ग्रुप्स ऑफ यंगस्टर्स, उन्होंने यंगस्टर्स के ग्रुप को देखा। दे प्लेइंग फुटबॉल ऑन द बीचेस एंड इन ओपन ग्राउंड्स, जो कि ओपन ग्राउंड्स में और बीचेस पे क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। मनोहर सेड फुटबॉल इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन गोवा, फुटबॉल जो है वो गोवा का बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। द मेन फुटबॉल स्टेडियम इज़ द नेहरू स्टेडियम इन मारगांव, ठीक है। तो मारगांव में ये जो नेहरू स्टेडियम है ये वहाँ का पॉपुलर स्टेडियम है, ठीक है। मेनी क्रिकेट मैचेस ऑल्सो प्लेड हियर, यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट मैचेस भी खेले जाते हैं। आई ऑल्सो लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, और मुझे जो है फुटबॉल और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। शरत ने मरमर किया,
बोला। दे ऑल्सो विजिटेड फोर्ट अगोडा, ठीक है, अगोडा फोर्ट को भी उन्होंने विजिट किया बिफोर रिटर्निंग टू देयर होटल, अपने होटल पर लौटने के पहले। दे बॉट की चेन्स, उन्होंने की चेन खरीदा। डेकोरेशन पीसेस को खरीदा। मेड ऑफ सी शेल्स एज सोवेनियर्स, सोवेनियर्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जब हम कहीं घूमने जाते हैं जो हम खरीद के ले आते हैं लोगों को देने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, सोवेनियर्स कहते हैं, ठीक है, जो गिफ्ट्स हम खरीदते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे एज अ सोवेनियर्स। एट नाइट द बैग्स वर पैक्ड, और रात में उन्होंने अपने बैग को पैक किया। बिफोर दे वेंट टू बेड, ठीक है, सोने जाने से पहले। कल्याणी सेड गुड नाइट, टुमारो वी विल बी बैक होम। कल्याणी ने सबको गुड नाइट कहा और उसने कहा वी विल बी बैक होम, मीन्स कि हम अब कल घर लौट चलेंगे। एवरी वन स्माइल्ड, सभी मुस्कुराए। एंड सेड येस, और हाँ कहा। मनोहर सेड गोन्स एंड चेयरफुल एंड फ्रेंडली पीपल, ठीक है, गोवान्स आर चेयरफुल एंड फ्रेंडली पीपल, मीन्स गोवा के लोग कैसे हैं, बहुत ही चेयरफुल हैं और बहुत ही फ्रेंडली है। वी केम टू नो अ लॉट अबाउट द पीपल, हमें यहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चला। एंड कल्चर ऑफ गोवा, और गोवा के कल्चर के भी बारे में पता चला। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल दिस, हमें इन सब चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। आई लव दिस प्लेस, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। नाउ चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. Bye.